एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल थ्रू कैश अकाउंट. ठीक है. Following is the balance sheet of Meenakshi, Sunita, and Ritu, who were sharing profits or losses in the ratio of their capitals. So their profit sharing ratio is their capital ratio. Try to understand. ठीक है. So they are sharing profit and losses in the ratio of capital. आगे. That is 5:2:3. Total capitals are 1 lakh. Creditors are 15,000. Plant and machinery, land and building, stock, debtors less RDD, and there is a cash balance of 17,000. Ritu retires from the business. Third partner retires from the business on 31st March 2012, and the following adjustments were agreed to. The stock is to be valued at 92% of its book value. क्या बोला है वहां पे? स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब 8% से रिड्यूस करना है. आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स. आरडीडी हमें 10% मेंटेन करना है. नाउ द आरडीडी इज 12,000. उसका 10% मतलब 1,200 रुपीज आरडीडी रखना है. So we have to increase RDD by 200 is the loss. The value of land and building to be appreciated by 20%, it will be gain. The value of the goodwill of the firm be fixed at 12,000, and Ritu's share in the same be adjusted in the right account of continuing partners in their gain ratio. So हमें क्या करना है? Only outgoing partner share raise करना है and वो write off करना है. हम gaining ratio में हम उसको write off करेंगे. The entire capital of the new firms be fixed at 1,60,000. Generally admission के question में, if you remember, capital adjustment जो होती थी, admission के question में जब हम capital adjustment करते थे, we used to take the capital of the new partners as a base. Suppose किसी एक partner का capital 1 लाख है, किसी नए partner का capital 1 लाख है, और उसका शेयर 1/4 है, तो हम बोलते हैं टोटल कैपिटल इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/1, उसका टोटल कैपिटल 4 लाख होगा. एंड अकॉर्डिंगली वी यूज्ड टू सॉल्व इट कि 4 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ ए न्यू पार्टनर, 1 लाख इज द कैपिटल ऑफ ए न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय 4/1, 4 लाख इज द टोटल कैपिटल, उसको हम न्यू पीएसआर में रखते थे. सो एडमिशन में हमें टोटल कैपिटल ढूंढना पड़ता था, फर्म का टोटल कैपिटल ढूंढना पड़ता था. रिटायरमेंट में हमें टोटल कैपिटल ढूंढने की जरूरत नहीं है. रिटायरमेंट में they will directly give you, और डेथ में they will directly give you total capital of the firm. जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, तो the entire capital of the new firm is 1,60,000. Entire capital is 1,60,000 between Meenakshi and Sunita in proportion to their new profit sharing ratio, which is 3:1. So their new PSR is 3:1. By making adjustment for the difference in the cash, prepare P&L adjustment account, capital account, and balance sheet after retirement of Ritu. Let's start. Solution. Let's start. ठीक है. So try to understand. We have to adjust the capital in the new profit sharing ratio, and whatever difference in the capital is to be adjusted in their right cash account और बैंक अकाउंट एज द केस में भी, राइट, वो हम कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे. एंड जो गुडविल है हम गेनिंग लूजिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट करनी है. सोल्यूशन ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. आगे लिखो, चलो. कैलकुलेशन ऑफ और गुडविल एडजस्टमेंट लिखो. गुडविल एडजस्टमेंट, राइट. हाँ लिखो गुडविल एडजस्टमेंट. गुडविल एडजस्टमेंट हमें गेनिंग लूजिंग रेशियो में करनी है. तो देयर आर 3 पार्टनर्स, मीनाक्षी, सुनीता, रितु. मीनाक्षी, सुनीता एंड रितु. ठीक है. 3 पार्टनर्स. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 12,000. 12,000 in new PSR, which is 3:1. 12,000 in the old PSR.
which is 5:2:3 in the ratio of capital. In the ratio of capital, 5:2:3. So 12,000 in 3:1 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3,000 आएगा. 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 9,000 एंड 3,000. ठीक है, आगे आगे देखते हैं. 12,000 in the old PSR. 12,000 divided by 10. 12,000 divided by 10. 1,200 multiplied by 6. 1,200 multiplied by 5. 6,000. 2,400. 1,800. गलत है. ओ, कितना आएगा? ये 3,600 आएगा. सॉरी, ये 3,600 आएगा. अगर क्वेश्चन में बोलते रेज द गुडविल, रेज एंटायर गुडविल, तो हम इस रेशियो में रेज करेंगे एंटायर गुडविल. अगर क्वेश्चन में बोलते रेज करके राइट ऑफ करो, तो फिर राइट ऑफ इस रेशियो में करेंगे. क्या लिखा है ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं. अगर क्वेश्चन में लिखा है रेज एंटायर गुडविल, तो हम 6,000, 2,400, 3,600 ऐसे रेज करेंगे. अगर क्वेश्चन में लिखा है रेज एंटायर गुडविल एंड देन राइट ऑफ, तो पहले रेज, नीचे की लाइन रेज की है, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे उतना, और फिर डेबिट मार देंगे पार्टनर्स को 9,000, 3,000. एंड इन दोनों का नेट इज रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन द गुडविल एंड राइट ऑफ. ठीक है, तो यहां पे लिखा जाएगा राइट, गेनिंग लूजिंग. राइट, या राइट, यहां पे नेट लिखो. नेट मीनाक्षी 9,000, पहले उसको 9, पहले 6,000 मिलते थे, आगे से 9,000 मिलेंगे. शी गेन 3,000. शी गेन 3,000. सुनीता को पहले 2,400 मिलते थे, बाद में 3,000 मिलेंगे. शी गेन 600 एंड शी हैज सैक्रिफाइस 3,600. हम इसको क्रेडिट करेंगे जिसने सैक्रिफाइस किया है, एंड हम मीनाक्षी को डेबिट करेंगे, सुनीता को डेबिट करेंगे. एंट्री आएगी, ध्यान देना, देयर आर 2 एंट्रीज. फर्स्ट एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 3,600 टू गुडविल अकाउंट डेबिट 3,600 टू रितुज कैपिटल 3,600. ये फर्स्ट एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रितुज कैपिटल. सेकंड एंट्री आएगी, सेकंड एंट्री आएगी राइट, हमें इन दोनों को डेबिट करना है. मीनाक्षी कैपिटल अकाउंट, मीनाक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 to goodwill account credit 3,600. पहले गुडविल रेज किया, पहले गुडविल रेज किया 3,600 का, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर, एंड फिर उस 3,600 को राइट ऑफ किया इन दियर गेनिंग रेशियो. व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? अगर कोई आपको पूछता है दिस इज गेनिंग रेशियो, दिस इज गेनिंग रेशियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे गेनिंग रेशियो इज 3,000 is to 600. That is 5:1. 5:1. The gaining ratio is 5:1. नेक्स्ट आगे. ठीक है, यहां तक क्लियर है. चलो, ये गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई. अब हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है. एडजस्टमेंट नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट. कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट देखते हैं.
कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या है, दे हैव गिवन यू टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म रुपीज, कितने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 1,60,000। हमें इस 1,60,000 को न्यू पीएसआर में रखना है, राइट। फर्स्ट टू पार्टनर्स मीनाक्षी एंड सुनीता, ये दोनों कंटिन्यू करने वाले, मीनाक्षी एंड सुनीता, मीनाक्षी एंड सुनीता, इनका न्यू शेयर 3:1 है, इनका दोनों का न्यू शेयर कितना है 3:1। सो 4 लाख में से मीनाक्षी हैज टू मेंटेन 3/4, सुनीता हैज टू मेंटेन 4 लाख में से 1/4। So that is Meenakshi has to maintain 3 lakhs capital, Sunita has to maintain 1 lakh capital, 3 lakhs and 1 lakhs। ठीक है, ये कैपिटल रखने हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल्स रहेंगे। तो हमारे पास अब गुडविल की भी एडजस्टमेंट है, हमारे पास कैपिटल की भी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अच्छा, ओ 1,60,000 है, मैंने 4 लाख कहा से, ओ सॉरी 1,60,000 सॉरी 1,60,000 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 40,000, मतलब इसको रखना है 1,20,000। मीनाक्षी हैज टू मेंटेन 1,20,000 एंड सुनीता हैज टू मेंटेन 40,000 कैपिटल। इतने कैपिटल्स उनको रखने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, करेक्ट है, मैंने गलत लिया था, मैंने 4 lakhs लिया था। सो इतने कैपिटल रखने हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में दे आस्क यू टू रेज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर इन द गुडविल एंड राइट ऑफ, तो ये एडजस्टमेंट्स करो, ऐसे एडजस्टमेंट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड पास 2 एंट्रीज, एक एंट्री पहले गुडविल रेज होगा एंड फिर राइट ऑफ कैसे होगा उसकी अलग से एंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नॉर्मल है हमारे लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैलेंस शीट, एज ऑन। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, आगे देयर आर 3 पार्टनर्स। ठीक है, आगे उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक एंड रिवैल्यूएशन। जिसे P&L एडजस्टमेंट एंड फिर उसके बाजू में कैश ऑब्लिक बैंक। कैश ऑब्लिक बैंक, ध्यान देना। ठीक है, आगे चलो। क्या क्या नाम है, मीनाक्षी, सुनीता, रितु। ठीक है, दिस इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
दिस इज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ठीक है, आगे यहां तक ठीक है. आगे अब हमें वी ऑलरेडी नो द क्लोजिंग कैपिटल्स. हमें पता है इसका 1,20,000 रखना है, इसका 40 रखना है. वी नो द कैपिटल्स, लिख दो डायरेक्टली. टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड में कैपिटल एडजस्टमेंट में यू ऑलरेडी नो द कैपिटल बैलेंसेस टू बी केप्ट. टू बैलेंस कैरिड डाउन. फर्स्ट पार्टनर को रखना है 1,20,000, सेकंड पार्टनर को रखना है 40,000. एडमिशन में भी हम ऐसे ही करते थे. एडमिशन में भी हम ऐसे ही करते थे. हम कैपिटल एडजस्टमेंट में जो कैपिटल आते थे हम डायरेक्टली क्लोजिंग में रख देते थे. इतने कैपिटल्स होने चाहिए. आगे बराबर. सो लिख दो उधर लाइबिलिटी साइड पे 1,20,000 एंड 40 इतने कैपिटल्स होने चाहिए. लिखो कैपिटल्स. मीनाक्षी, सुनीता 1,20,000 40 टोटल होना चाहिए 1,60,000. टोटल होना चाहिए 1,60,000. आगे यहां तक ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अब जो भी है एक जगह पे लिखेंगे. दीज आर ओपनिंग कैपिटल 50, 20, 30. 50, 20, 30 by balance brought down. 50,000, 20,000, 30,000 opening capitals. These are opening capitals. Next आगे creditors 15,000. 15,000 आगे. नेक्स्ट उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 20,000. नेक्स्ट उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 55,000. आगे स्टॉक 12,000. स्टॉक 12,000 आगे. डेटर्स 12,000 माइनस आरडीडी 1,000 इनर कॉलम में. डेटर्स 12,000 आरडीडी अभी 1,000 इनर टू इनर कॉलम. देन वो चेंज होने वाला है. कैश बैलेंस इज 17,000. टू बैलेंस बॉट डाउन 17,000. टू बैलेंस बॉट डाउन 17,000 आगे. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. फिर लिखा है द स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. हम उसको 92% वैल्यू करना है लेस राइट ऑफ एट द रेट ऑफ 8%. स्टॉक को 8% से राइट ऑफ करना है. सो इट विल बी 960. 120 is a 1%. 120 will be 1%. लास्ट के टू डिवाइड करो 1% मिलेगा. मल्टीप्लाई बाय 8 960. 1000 माइनस करके 40 ऐड करूंगा 11,040. ठीक है, इट इज अ लॉस. देयरफॉर रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा टू स्टॉक 960. टू स्टॉक 960 आगे. उसके बाद RD to be maintained at 10% on debtors. RDD हमें 10% रखना है 1,200. अभी RDD 1,000 है, हमें उसको 2,000 से 200 से इंक्रीज करना है टू मेक इट 1,200. So your net debtors are 10,800. 10,800. So RDD is increased by 200. It is a loss to RDD 200. To RDD 200 आगे.
Next, the value of land and building to be appreciated by 20%. Add appreciation at the rate of 20%, which is 10% is 5,500, उसका डबल चाहिए 5,000 का डबल 10,000 500 का डबल 1,000 11,000 66,000 की प्लांटेड लैंड एंड बिल्डिंग हो गई. इंक्रीज इन असेट डेबिट हमें क्रेडिट करना होगा सेकंड इफेक्ट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,000. क्लियर है? आगे नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द रितु goodwill of the firm is 12,000. However, partner decided to raise adjust रुति share in the gaining ratio, मतलब इस रेशियो में. ऐसे हमें रितु के कैपिटल जो जा रही ना, जो आउटगोइंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके कैपिटल में ऐड करना होता है. तो हमें रितु के कैपिटल में 3,600 ऐड करने. जो सैक्रिफाइस करेगा ना, जो सैक्रिफाइस करेगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिसकी डेथ हो रही है, वो सैक्रिफाइस करेगा, उसके कैपिटल में हम ऐड करेंगे. और जिन्होंने गेन किया है उनके कैपिटल से माइनस करेंगे. किन्होंने गेन किया है? ये मीनाक्षी एंड सुनीता ने गेन किया है 3,600 रिस्पेक्टिवली. तो उनके कैपिटल से माइनस करेंगे. मीनाक्षी से कैपिटल से 3,000 माइनस करेंगे, सुनीता के कैपिटल से 600 माइनस करेंगे. देखो हमने क्या किया, हमने बहुत सिंपल एक लॉजिक लगाया. हमने क्या लॉजिक लगाया कि हमें जो पार्टनर जा रहा है उसने सैक्रिफाइस किया होगा और इन दोनों ने गेन किया. तो हमने 3,000 मीनाक्षी से लेके किसको दिए? ये जो रितु है उसको दिए. एंड सुनीता से 600 लेके किसको दिए? रितु के दिए. ऐसे टोटल 3,600 निकाले और रितु के जेब में डाल दिए. आगे लिखो बाय गुडविल. किसके थ्रू एडजस्ट करना है? बाय गुडविल. ठीक है, यहां पे लिखो टू गुडविल इनटू ब्रैकेट गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो जो हमने यहां पे ढूंढा था, गेनिंग रेशियो, इफ यू रिमेंबर, माय गेनिंग रेशियो वाज 5:1. क्या रेशियो था? 5:1. 5:1. So 3,600 in 5:1, 3,600. आगे उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट हमें कैश के थ्रू करने को बोला है. ठीक है, हमने कैपिटल पहले लिख दिया. कितने कैपिटल होने चाहिए? 1,20,000 40 होने चाहिए. नाउ वी कैन क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट. और जहां से मैं देख रहा हूं वहां पे प्रॉफिट है 11,000 माइनस 11,000 माइनस 960 एंड 200 40,000 हो जाएगा. वो 1,000 हो जाएगा. 1,200 आ जाएगा. 12,000, I think it is 10,842. 2 लिखो. 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू old partners in old ratio, that is MSR. MSR. ठीक है, in their old ratio which is 5/10, 2/10, 3/10. निकालो कितना आएगा? एनीवन? कोई बोलेगा मुझे कितना आएगा? प्लीज. बोलो. एनीवन? अच्छा, प्रॉफिट गलत लिया क्या? 9,840 होना चाहिए. ठीक है, सो 9,840 इन PSR. बोलो, डिवाइड करके बोलो. यस प्लीज. डिवीजन चाहिए मुझे.
अच्छा, एम का कितना है 4920, ओके, 1968 एंड 2952, 2952 बराबर। सो यहाँ पे क्रिएट करेंगे बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट, इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट 4920 1968 2952 2952, ठीक है। नाउ एज यूजुअल हमें कैपिटल्स में मिसिंग फिगर ढूंढनी है। पहले तो जो पार्टनर आउट गोइंग है उसका कैपिटल क्लोज करेंगे। वी विल ट्रांसफर इट टू रितुज लोन अकाउंट, कुछ लिखा नहीं है, हम लोन में ट्रांसफर करेंगे। कुछ लिखा नहीं है उसके सेटलमेंट के बारे में। सो रितु का टोटल कैपिटल बन रहा है 52, देन 11, 1 कैरिड 6, 36,152। उसका टोटल कैपिटल बन रहा है 36,152। ये उसके लोन में डाल दिया हमने, रितुज लोन। रितुज लोन अकाउंट 36,152। अगर गलत है तो मुझे बोल देना, ठीक है। उसके बाद हमें कैपिटल बैलेंस करने देखना है विच साइड इज हेवियर। किसी के केस में डेबिट साइड विल बी हेवियर बिकॉज हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, हमारे पास क्लोजिंग भी कैपिटल है, फिर भी कैपिटल मैच नहीं होंगे, राइट, टैली नहीं होंगे बिकॉज देर इज सम डेफिशिएंट कैपिटल सर, सरप्लस कैपिटल जो हमें एडजस्ट करना है बैंक या कैश के थ्रू। अब यहाँ पे आप देखोगे, राइट, एम के केस में मुझे डेबिट हेवियर लग रहा है क्रेडिट से, डेबिट इज मोर। एम के केस में डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। एस के केस में भी सेम है, डेबिट साइड इज हेवियर देन क्रेडिट साइड। तो लिखो दिस इज 1,23,000, दिस इज 40,600। नेक्स्ट, सो यहाँ पे 80 चाहिए, 80, 55 हो जाएगा, 55 प्लस 8 63 प्लस 6 68,000, राइट, 80। अच्छा, लोन शुड बी 552, लेट मी चेक। अच्छा, दिस विल बी 5 बराबर 15 आएगा ना। सो लोन बन गया 36,552 का, ठीक है, 552, ओके, 36,552। अच्छा ठीक है, आगे इसका बराबर क्या 68,080। एम के केस में क्रेडिट इज लेस, डेबिट इज हेवियर, एंड इसके केस में कितना है, लेट मी फाइंड। 2, 1 कैरिड 7, 10, 1 carried 10, 16, 1 carried 21, 22, 18. This is by cash. So they have to bring the cash. They have to brought in cash to make up their capital. So यहाँ पे आएगा 2, Meenakshi and Sunita. Meenakshi brought 68,080. The other partner brought 18,632. Total capital. Total cash by balance carried down. Total cash is 2, 11, 1 carried 7,
15, 23, 2 carried, 8, 9, 10. I think cash balance is 1,03,712. 1,03,712. 1,03,712. लिखो 1,03,712. तो बैलेंस शीट टोटल आ जाएगी. प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज 20,000. कट मत करना, अंडरलाइन करके बाहर लिख दो. ठीक है. It is 552. Then 11, 1 carried, 17, 18, 21. 2,11,552. 2,11,552. क्रेडिट की भी, एसेट की भी टोटल उतनी आ रही कि चेक करो. 40 plus 12, 52. 15, 1 carried. 12, 1 carried. 7, 8, 8 plus 3, 11. 1 carried. 3, 9, 10, 11 plus 10, 21. 2,11,552. Yes, 2,11,552. चेक करो. 2,11,552. यस निधि मैडम करेक्ट. आगे 2,11,552 is total. आगे ठीक है. एनीवन हैज डाउट? किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैज डाउट? इसमें गुडविल एडजस्टमेंट भी हमने देखे और कैपिटल एडजस्टमेंट भी देखी. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 10 किया. देन लेट मी टेक एडिशनल क्वेश्चंस. एक आधा और क्वेश्चन होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. यहां पे भी ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आता है, इन तीनों का ओल्ड रेशियो था 5:2:3. क्या रेशियो था? 5:2:3. ये पार्टनर चला गया, बट इनका न्यू रेशियो इज 3:1. नाउ यू कैन सी द ओल्ड रेशियो is not equal to their new ratio. Old ratio is not equal to their new ratio. Therefore, sacrificing ratio is not old ratio. Sacrifice ratio 5:2 नहीं है.
सैक्रिफाइस रेशियो कुछ अलग है, 5:1 है। सो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना एवरीवन। एबीसी आर द पार्टनर्स, इनका रेशियो है 5:2:3। एग्जाम्पल, बी चला गया और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, मतलब इन दोनों का रेशियो रहेगा 5:3। इनका रेशियो रहेगा 5:3। ये 5:3 यू कैन सी इट इज इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो। इनका पहले रेशियो ए एंड सी का 5:3 था, नया रेशियो भी 5:3 है, मतलब दे आर सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड एज द केस में भी। यहाँ पे उन्होंने गेन किया होगा बिकॉज यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ है, तो दे हैव गेन्ड इन द ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो, gaining ratio is their old ratio, that is 5:3, that is 5:3। उनका गेनिंग रेशियो उनके ओल्ड रेशियो इतना ही है। ऑब्जर्वेशन, सपोज एबीसी वर द पार्टनर्स, इनका रेशियो होता 3:2:1। ए चला गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, बस खाली इतना दिया है कि एबीसी आर द पार्टनर, 3:2:1 इज द रेशियो। ए चला गया, कुछ लिखा नहीं, मतलब इन दोनों का रेशियो 2:1 रहेगा। मतलब उनके भी केस में the gaining ratio will be equal to their old ratio, which is 2:1, which is 2:1। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है एबीसी आर द पार्टनर्स, इनका रेशियो था 5:2:3, सी चला गया एंड इन दोनों का रेशियो 3:1 है। तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि न्यू रेशियो इज नॉट इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो। New ratio is not equal to their old ratio, therefore gaining ratio is not old ratio, gaining ratio is not old ratio, कुछ तो अलग है। तो ऐसे केसेस में टोटल गुडविल इन द न्यू रेशियो, टोटल गुडविल इन द ओल्ड रेशियो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे नेक्स्ट लिख लेना एग्जाम्पल, एवरीवन। एग्जाम्पल लिखो, टोटल गुडविल ऑफ फर्म is rupees 60,000, is rupees 60,000। ABC are the partners in the ratio of 3:2:1, 3:2:1। ठीक है, B रिटायर्स और B की डेथ होती है। शो, लिख लेना, B share in the goodwill, B share in goodwill to be adjusted in gaining ratio। मतलब बी शेयर इन द गुडविल रेज करो और राइट ऑफ करो, खाली बी का शेयर रेज करके राइट ऑफ करो। ठीक है, मतलब गेनिंग रेशियो में। ए, ध्यान देना, सॉल्यूशन ए बी सी, ध्यान देना। ओल्ड पीएसआर 3:2:1, न्यू पीएसआर अब बी नहीं है। क्वेश्चन में कुछ लिखा है क्या दूसरा? कुछ क्वेश्चन में कुछ दूसरा लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है, ध्यान देना। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि ए एंड सी का क्या रेशियो रहेगा, कुछ लिखा है क्या उन्होंने कैसे गेन किया, कुछ नहीं लिखा है। मतलब ही इनका रेशियो 3:1 रहेगा।
Therefore, A and B's old peers are A and C's, sorry. A and C's old peers are is equal to their new peers are. Therefore, they have sacrificed or they have gained, sorry. रिटायरमेंट डेथ में वो गेन करेंगे. They have gained in old PSR, that is 3:1. They have gained in the old PSR, that is 3:1. Again, ठीक है, gaining ratio is 3:1. Therefore, B share in goodwill. No need to prepare ABC, total goodwill in the new ratio, total goodwill in the old ratio. आप डायरेक्टली बोल सकते हो. B share in the goodwill 60,000 में B का शेयर था 2/6, that is 20,000. B का शेयर कितना था? 20,000. This 20,000 हमें B को देना है. B जा रहा है ना, तो B के जेब में 20,000 डालना है. और किसके जेब से निकालना है? A and C के जेब से निकालना है in the ratio of 3:1. 20,000 in 3:1 मतलब 15,000 A से निकालना है, 4,000 5,000 C से निकालना है. इतना सिंपल है. देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब B चला गया तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए. कुछ अलग रेशियो लिखा है क्वेश्चन में? नहीं. तो मैंने ऑब्जर्व किया कि A एंड C का ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू देयर न्यू रेशियो. जब भी ऐसे होता है तो इन केस ऑफ एडमिशन sacrifice ratio is old ratio, in case of retirement and death gaining ratio is old ratio. तो मुझे पता चला कि गेनिंग रेशियो 3:1 है. मतलब जो बी का गुडविल है 20,000, ये ए एंड सी ने गेन किया 3:1 में. मतलब 20,000 में से ए को मिलेगा 15,000 और सी को मिलेगा 5,000. तो हम ए से लेंगे 15,000, सी से लेंगे 5,000 और किसको देंगे? बी को देंगे. तो इसकी एंट्री लिख लेना, एंट्रीज. गुडविल अकाउंट डेबिट, पहले 20,000 रेज किया जाएगा टू बीस कैपिटल. गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल. ठीक है. सेकंड, फिर ए से लेना है, ए से लेना है 15,000, डेबिट मारो ए को. सी से लेने 5,000, डेबिट मारो सी को, टू गुडविल 20, टू गुडविल 20. ठीक है. अगर आप नेट एंट्री देखते हो, नेट एंट्री देखते हो तो एंट्री होती है ए अकाउंट डेबिट 15, ए से लोगे 15, बी अकाउंट डेबिट 5,000, टू ए अकाउंट डेबिट 15,000, सी अकाउंट डेबिट 5,000, टू बी अकाउंट क्रेडिट 20,000. दिस इज वन एग्जांपल आपको समझाने के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेना, कॉपी, ध्यान देना. Total goodwill of the firm is 60,000. A, B, C are the partner 3:2:1. B retire. A and C are equal partners. वो बोलते हैं हम इक्वल पार्टनर्स रहेंगे ए एंड सी. ठीक है. B's share in the goodwill to be adjusted in gaining ratio. Solution. Let's see. ठीक है एवरीवन. ठीक है. सॉल्यूशन. कौन कौन पार्टनर थे? ए बी सी. उनका ओल्ड पीएसआर क्या था? 3:2:1. बी नहीं रहेगा. उनका न्यू पीएसआर दिया है क्या आपको? हाँ.
एएनसी का पीएसआर 1:1 है, एएनसी का पीएसआर 1:1 है। देयरफॉर ANC's new PSR, which is 1:1, is not equal to their old PSR, which is 3:1। उनका पहले रेशियो दोनों में 3:1 था, उन दोनों का रेशियो 3:1 था, आगे से वो इक्वल पार्टनर्स है। Therefore, they have not gained in old PSR. Therefore, goodwill is adjusted। जब ऐसे होता है तो वो टेबल डालो, जब ऐसे होता है ना तब वो टेबल डालना, पहले मत डालना। ऑब्जर्वेशन से देखो, अगर आपने पहले क्वेश्चन में भी टेबल डालते हो तो भी आपका आंसर आएगा, डोंट वरी एट ऑल। सो ध्यान देना, गुडविल इज एडजस्टेड ABC। 60,000 in new PSR, which is equal 30,000 dash 30,000, 30,000 and 30,000, 60,000 in old PSR, 3:2:1 डिवाइड बाय 6 करोगे, 60 डिवाइड बाय 6 10 आएगा, 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब देखो, ए को पहले 30 मिलता था, बाद में 30 मिल रहा है। ए ने ना ही गेन किया ना ही सैक्रिफाइस किया, ए ने ना ही गेन किया ना ही सैक्रिफाइस किया। बी को पहले 20 मिलता था, आगे से 0 मिलेगा, तो बी हैज सैक्रिफाइस 20,000। सी को पहले 10,000 मिलता था, आगे से 30 मिलेगा, सी हैज गेन 20,000। तो सी ने गेन किया है तो सी से रिकवर करना होगा, एंड बी इज सैक्रिफाइसिंग। नो, अब आप देखोगे खाली सी ने गेन किया है, ए एंड सी ने नहीं गेन किया। तो वही मैं बोल रहा हूं कि आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलना चाहिए कि क्या गेनिंग लूजिंग रेशियो हो सकता है, ठीक है। वो ओल्ड रेशियो है या नहीं है, ये तो ढूंढना आना चाहिए आगे। देयरफॉर पहले गुडविल रेज किया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। हम जो पार्टनर जा रहा है बी, उसका गुडविल रेज करेंगे, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्रेडिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बीस कैपिटल 20,000। फर्स्ट एंट्री आ गई, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बीस कैपिटल 20,000। सेकंड, फिर गुडविल राइट ऑफ करेंगे, किन राइट। सो राइट ऑफ करने वाले सी को, सी अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 20,000। सो फर्स्ट एंट्री आ गई गुडविल टू बी, एंड सेकंड एंट्री आ गई सी टू गुडविल। हमने बी जो जा रहा है बोला तू 20,000 ले ले भाई, तू तेरा ले ले, तो हमने बी के जेब में 20 डाला, हमने बी को क्रेडिट किया, मतलब बी के जेब में 20 डाला, और किससे निकाला, जिसने गेन किया है सी से 20,000 निकाले। सो सी से 20 निकाल के बी के जेब में डाल दिया। दिस इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं चीज मैं 10 बार बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है फिर भी बच्चे गलती करते हैं। 80% बच्चे करेक्ट करेंगे, 20% बच्चे फिर भी गलती करेंगे, फिर भी गलती करेंगे। सेम लॉजिक एडमिशन के लिए भी, सेम लॉजिक रिटायरमेंट डेथ के लिए भी।
एज लॉन्ग एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, जो पार्टनर्स कंटिन्यू करने वाले हैं उनका न्यू रेशियो अगर ओल्ड रेशियो इतना ही है तो गेनिंग लूजिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, आगे क्लियर है? आगे अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है एवरीवन। ठीक है, ध्यान देना। दे हैव गिवन यू लायबिलिटीज XYZ, क्रेडिटर से बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ बैंक अकाउंट विथ नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम। लैंड इन्वेस्टमेंट डेटर्स स्टॉक बिल्स रिसीवेबल एंड प्रॉफिट लॉस, लॉस है कैपिटल से माइनस करेंगे। Z decided to retire from the firm. Old PSR is equal 1:1:1. New PSR is 1:2. कौन चला गया? Z. So पहले रेशियो था 1:1:1, आगे से रेशियो रहेगा 1:2। Z नहीं है, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि गेनिंग लूजिंग रेशियो इज नॉट ओल्ड रेशियो, गेनिंग लूजिंग रेशियो इज समथिंग एल्स। तो हमें वो गुडविल इन द न्यू रेशियो, गुडविल इन द ओल्ड रेशियो करना पड़ सकता है। आगे क्या लिखा है देखो। लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, लॉसेस है दोनों जगह पे। डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ वर्थ ₹3,000, लॉस है 3,000 के डेटर्स डिक्रीज करने। स्टॉक टू बी डिवैल्यूड, डिवैल्यूड मतलब कम करना है, टू 25,000, ये भी लॉस है। गुडविल टू बी रेज्ड to the extent of retiring partner share of ₹20,000, retiring partner share of ₹20,000। सो जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल 20,000 है, जो पार्टनर जा रहा है उसका गुडविल 20,000 है। कोई मुझे बोलेगा व्हाट विल द टोटल गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल कितना रहेगा? एनीवन? जो पार्टनर जा रहा है जेड, उसका शेयर इन द गुडविल 20,000 है, तो कैन एनीवन पिंग मी द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म? एनीवन? लॉजिकल है यार। ओके, एनीवन? $60,000, परफेक्ट परफेक्ट। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। कैसे ढूंढा आपने? आपने बोला जो पार्टनर है उसका शेयर 1/3 है एंड उसका गुडविल 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1 करोगे, टोटल गुडविल 60 है, उसका 1/3 20,000 आता है। परफेक्ट, आगे। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। आगे उसमें से जो पार्टनर जा रहा है जेड, उसका शेयर 20,000 है एंड देन रिटर्न बैक, गुडविल रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है। अमाउंट पेएबल टू पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। पार्टनर to decided that their capital 2 rupees 5 lakhs to be restated in the new PSR, adjustment to be made through partners current account, जो भी कम ज्यादा रहेगा करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, गुडविल एडजस्टमेंट। फर्स्ट इज गुडविल एडजस्टमेंट, फर्स्ट इज गुडविल एडजस्टमेंट। लिख लेना, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1, 60,000। जैसे हम टोटल कैपिटल ढूंढते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, वैसे हमने यहाँ पे टोटल गुडविल ढूंढा है। जो पार्टनर, एक पार्टनर का गुडविल पता है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 60। देयरफॉर XYZ, ठीक है,
60,000 इन न्यू पीएसआर. ऑलवेज रिमेंबर हम टोटल गुडविल को डिवाइड करते हैं इन न्यू पीएसआर. 60,000 in old PSR. $60,000 in new PSR, 60,000 in the old PSR. देखते हैं. What is old PSR? 1:1:1. New PSR is 1:2. So 60,000 equally 20, 20, 20. 60,000 in the new ratio 20,000 and 40,000. Z का कुछ नहीं. सो आप देख सकते हो x पहले 20 मिलते थे, बाद में भी 20 मिल रहे. x ने नहीं गेन किया, नहीं सैक्रिफाइस किया है. y पहले उसको 20 मिलते थे, आगे से 40 मिलेंगे. y हैज गेन 20,000. z उसको पहले 20 मिलते थे, आगे से 0 मिलेंगे. ही हैज सैक्रिफाइस 20,000. y ने गेन किया 20,000. z ने सैक्रिफाइस किया 20,000. सो z को क्रेडिट करेंगे 20,000 एंड y से लेंगे 20,000. y को बोलेंगे तूने 20,000 तुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, तेरे से हम लेंगे, तुझे डेबिट मारेंगे. एंड z को बोलेंगे तुझे आगे से 20,000 कम मिलेगा, तूने सैक्रिफाइस किया है, तेरे जेब में डालेंगे, मतलब तुझे क्रेडिट करेंगे. सो गुडविल के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड. गुडविल के लिए हम y को डेबिट मारने वाले एंड z को क्रेडिट मारने वाले हैं. ठीक है, आगे क्लियर है यहां तक? देयरफॉर एंट्री फर्स्ट गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू जेड्स कैपिटल. उसका गुडविल रेज किया, जेड का गुडविल रेज किया, और इसको राइट ऑफ भी करना है. सेकंड y अकाउंट डेबिट 20,000. y से लेना है ना 2. गुडविल अकाउंट क्रेडिट 20,000. ठीक है, लिख लेना ना. यहां तक करो, चलो जल्दी करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. आगे नेक्स्ट, आगे. ठीक है, आगे देखते हैं. यहां तक होगा कैपिटल एडजस्टमेंट. सेकंड सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया. अब सेकंड, हाँ लिखो गुडविल एडजस्ट, सॉरी गुडविल एडजस्टमेंट हो गया. अब कैपिटल एडजस्टमेंट लिखनी है. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे विल गिव यू डायरेक्टली, डोंट वरी. रिटायरमेंट डेट में वो आपको टोटल कैपिटल देंगे, अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करने को बोला है तो. टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. तो डरने की बात नहीं है. दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू टोटल कैपिटल is rupees 5 lakhs. Is rupees 5 lakhs. This 5 lakh is to be maintained in the new profit sharing ratio. X and Y will continue the business in the ratio of 1:2. 1:2.
लेट मी चेक. थोड़ा उसको चेंज करो, 6 लाख करो, 6 लाख करो क्वेश्चन में. वो फ्रैक्शन लाता है बेटे का, वो फ्रैक्शन में रहेगा ना, उसको 6 लाख करो. ठीक है, थोड़ा इजी होगा अपना कैलकुलेशन. सो 6 लाख इन, मतलब इसको रखना है 2 लाख, इसको रखना है 4 लाख. X has to maintain 2 lakhs capital, Y has to maintain 4 lakhs capital. टोटल ऐसे 6 लाख कैपिटल हमें रखना है. ऐसे टोटल कितना कैपिटल रखना है? 4 लाख. आगे 2 + 4 6 लाख रखना है. मैंने चेंज किया क्वेश्चन में, सो दैट टू अवॉइड द फ्रैक्शनल. ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आंसर आएगा बट वो फ्रैक्शन में आएगा, कुछ अलग थोड़ा आ जाएगा फिर. देन चलो आज रिटायरमेंट हो गया तो फिर फ्रॉम टुमारो वी विल कीप ए लेक्चर इन द मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग में लेक्चर रहेंगे. 7:10 को मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, 7:10 to 8:30. ठीक है, सो कल मैं डेट स्टार्ट कर दूंगा. फिर आगे कैपिटल्स. ओके, आज इंडिया जीती ना रे, आज जीती ना रे. किसने देखा क्या मैच? अच्छा जीती, गुड. नेक्स्ट, मैंने नहीं देखा था, लेक्चर में था मैं सुबह से. ठीक है, आगे. कैपिटल्स. कैपिटल अकाउंट्स, दिस इज बैलेंस शीट. ठीक है, आगे. यस, कैश और बैंक की जरूरत भी नहीं है, नो नीड, बिकॉज देर इज नो चेंज. ना ही हमें पार्टनर को पेड करना है, ना ही कैपिटल एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है. जो भी करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है. ठीक है, सो कैश नहीं निकाला तो भी चलेगा. आगे द 3 पार्टनर्स आर XYZ एंड एक कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है. वी ऑलरेडी नो द क्लोजिंग कैपिटल्स. हमने अभी क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ के रखे हैं. एक्स का 2 लाख रखना है, वाई का 4 लाख रखना है. सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 lakhs and 4 lakhs, 2 lakhs and 4 lakhs. आगे नेक्स्ट, लाइबिलिटी साइड पे लिख दो कैपिटल्स. एक्स एंड वाई, 2 lakhs and 4 lakhs, टोटल 6 lakhs, टोटल 6 lakhs. आगे टोटल कितना आ गया? 6 lakhs. नेक्स्ट, आगे. ठीक है,
नेक्स्ट, कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अरे सॉरी, मैं गलत जगह पे लिख रहा हूँ. लाइबिलिटी साइड पे क्यों लिख रहा हूँ, एसेट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी बैलेंस शीट में दिया है एक जगह पे लिखो. मेक इट फास्ट. 1,40,000, 1,20,000, 1,00,000, 1,40,000, 1,20,000 and 1,00,000. देन आगे देयर इज क्रेडिटर्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं. 30,000 के क्रेडिटर्स है एज इट इज. 30,000 के क्रेडिटर्स है एज इट इज. उसके बाद ओवरड्राफ्ट है, उसमें भी कोई चेंज नहीं. बैंक ओडी 20. कैश या बैंक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज नो ट्रांजैक्शन विद ऑफ कैश और बैंक. लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 1,20,000. आई थिंक शायद से उसको राइट ऑफ करना है कुछ, तो 1,20,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट 60, डेटर्स 50. इन्वेस्टमेंट्स आर 60,000, डेटर्स आर 50,000. नेक्स्ट, स्टॉक 30, बिल्स रिसीवेबल 50. बिल्स रिसीवेबल 50, 30 and 50. स्टॉक 30, बिल्स 50. P&L डेबिट बैलेंस है, असेट साइड पे है, मतलब वो डेबिट बैलेंस है, लॉस है. टू P&L, पार्टनर्स से कैपिटल से डेबिट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा. डेबिट है, डेबिट बैलेंस डेबिट पे जाता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट पे जाता है, सिंपल एज दैट. एंड व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो? देयर ओल्ड रेशियो वाज 1:1:1. इक्वल पार्टनर्स थे वो, 1:1:1. सो ले लो, राइट. 1,00,000 इक्वली, वो बराबर सेट ऑफ हो जाता. एक सेकंड, ठीक है चलो. इक्वली वो बराबर यहाँ पे क्या आने वाला था? 33,333, 33,333, 33,334 आता है यहाँ पे. और ये 5 लाख है ना, एडजस्ट होने वाला था, वो बराबर राउंड ऑफ हो जाता. अब भी वो राउंड ऑफ नहीं होगा, मुझे लगा वो ऐसे नहीं रहेगा. ठीक है, कोई इश्यू नहीं, चलो जाने दो. 6 लाख लिया था, 6 लाख, 5 लाख से मे बी फिर आंसर राउंड ऑफ हो जाता. ठीक है, मुझे लगा नहीं ऐसे कुछ रहेगा. ठीक है, 1,00,000 तो राउंड ऑफ नहीं होगा ना. 1,33,333 आ गया ना. आगे कोई इश्यू नहीं, चलो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2. इट इज इंफॉर्मेशन. लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट को 10% से डिप्रिसिएट करना है, लेस. 12,000 का डिप्रिसिएशन, 1,08,000. इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ एट द रेट ऑफ 10%, 6,000. 54. ठीक है, देयरफॉर 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 12,000. इन्वेस्टमेंट 6,000. लॉसेस. नेक्स्ट, आगे. ठीक है, उसके बाद डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ वर्थ ₹3,000. 3,000 के डेटर्स राइट ऑफ करने, लेस बैड डेट्स. 47,000 के डेटर्स रहेंगे. लॉस है 2 डेटर्स. 3,000. आगे
उसके बाद स्टॉक टू बी डिवैल्यूड टू 25,000, स्टॉक को 25,000 करना है लेस राइट ऑफ, सो 5,000 से स्टॉक डिक्रीज करना है, अगेन लॉस टू स्टॉक, 5,000 का लॉस। आगे हाँ, एडजस्टमेंट 1 इंफॉर्मेशन थी, एडजस्टमेंट 2 हो गई, 3 हो गई, अब 4 करना है 20,000। अभी हमने ढूंढा था, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सी ने सैक्रिफाइस किया है, सॉरी बी ने सैक्रिफाइस किया है ना, बी चला गया है ना, हाँ बी ने सैक्रिफाइस किया है 20,000, तो बी के कैपिटल में 20,000 ऐड करेंगे। बी के कैपिटल या किधर है, सॉरी यहां पे देखो, राइट, वाई ने सैक्रिफाइस किया, बी बोल रहा हूं वाई ने सैक्रिफाइस किया 20,000, ये बी सी किधर देख रहा था मैं, अच्छा ऊपर देख रहा था क्या, तभी बोलो हाँ, एक्स वाई जेड में से जेड ने सैक्रिफाइस किया 20,000, तो जेड के कैपिटल में क्रेडिट करो, एंड वाई ने गेन किया है तो वाई के कैपिटल को डेबिट करो। सो हमें जेड को 20,000 देने वाई से लेके, हमें जेड को 20,000 देने हैं वाई से लेके, बराबर, तो यहां पे आएगा बाय गुडविल, यहां पे आएगा टू गुडविल, टू गुडविल। सो हमने किया क्या, जेड के जेब से निकाला, सॉरी वाई के जेब से निकाला, हमने क्या किया ध्यान देना, हमने वाई के जेब से निकाला और जेड के जेब में ऐड कर दिया 20,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट, यस, उसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट डन, और लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने कैपिटल बोला था, अमाउंट पेबल टू द पार्टनर टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ओके, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट थी। अब हमें ये क्लोज करना होगा, दिस इज लॉस 18, 21, 26,000 का लॉस है शायद से, by loss on revaluation transfer to old partners in old ratio, 18, 21, 26, 26,000 in equally to P&L adjustment, कैपिटल से माइनस होगा लॉस 26,000 इक्वली, कोई मुझे बोलेगा कितना आएगा, एनीवन, 26,000 इक्वली, मैं रिवैल्यूएशन लॉस इज 26,000, बोलो कोई बोलेगा मुझे 8,667, अच्छा 8,667, 8,666, 8,667, 667 एंड 666, ठीक है। अब हमें जेड का कैपिटल उसके लोन में ट्रांसफर करना है, उन्हें बोला है जेड का जो भी बैलेंस रहेगा उसके लोन में ट्रांसफर करो। सो इफ यू गो एंड चेक, जेड के कैपिटल में क्रेडिट है 1,20,000, हमें उसको देना है 1,20,000, हमें उसको पे करना है 1,20,000, और हमें उससे रिकवर करना है लॉस ऑफ 33,334, फिर P&L का लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस 8,666, मतलब ये आ जाएगा 42,000, मतलब ये आ जाएगा 42 प्लस 8 50, इज इट 78,000, चेक करो, इज इट 78,000, प्लीज कंफर्म, चेक करो, बोलो, $1,20,000 माइनस, हाँ बराबर है, होना चाहिए वही मेरे हिसाब से, 78,000 उसका बैलेंस है, उसके लोन में ट्रांसफर होगा टू जेड लोन अकाउंट,
उसका कैपिटल क्लोज हो गया, उसके लोन में चला गया, जेड्स लोन 78। अब इनका कैपिटल मैच नहीं होगा, क्यों मैच नहीं होगा? बिकॉज देयर विल बी सम डिफरेंस। ये जो दोनों दूसरे हैं ना, उनका कैपिटल मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उनका राइट, दे हैव गिवन यू ओपनिंग कैपिटल, आपने क्लोजिंग कैपिटल ढूंढे, बाकी सब है, फिर भी कैपिटल टैली नहीं होगा। देयर विल बी सम मिसिंग फिगर। आप देख सकते हो एक्स के केस में डेबिट इज मोर, इवन वाई के केस में डेबिट इज मोर। सो डेबिट की टोटल क्रेडिट पे लिखो, इट इज 2,42,000 minus 2,42,000 minus 1,40,000, it is 1,02,000। इसके केस में 4,62,000, डेबिट टोटल इज 4,62,000 minus 4,62,000 minus 1,20,000, 3,42,000। ये हमें उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने करंट अकाउंट के सामने बाय लिखा है, मतलब एक क्रेडिट में, इनको क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी कैपिटल, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। आपने लिखा है बाय करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट हैज अ डेबिट एंड कैपिटल क्रिएट हुआ है, कैपिटल क्रिएट होके करंट अकाउंट डेबिट है, तो असेट साइड पे आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट y, x एंड y, x एंड y। x का करंट अकाउंट में कितना है? 1,02,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है। और इसके इसमें 3,42,000, टोटल है 4,44,000। 4,44,000, ठीक है। आगे, सो टोटल इज 000, 8, 67, 70, 72। यहां पे देखता हूं 000 हर जगह पे, ओके। 12, 19, 24, 28, 2 carried, 12 plus 5, 17, 21, 23, 23 प्लस ये 50,000 बाहर आना चाहिए, 23 प्लस 5, 28, 28 प्लस 44, 28 प्लस 44, 4 ऐड करूंगा 32, 32 प्लस 40, 72। टोटल चेक करो बराबर है क्या मेरी बैलेंस शीट? यस, 7,28,000। ये दो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिए, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नहीं है। एक ही क्वेश्चन था, वो हमने बहुत पहले किया था, इसलिए शायद से आप भूल भी गए होंगे। इट वॉज फॉर योर रिविजन। एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? किसी का डाउट?
एसेट साइड टैली नहीं हो रही है,